Keep watching this video if you are underconfident, average, and you think you can't score well, because I will show you 10 easy, simple study tips that will help you to achieve your dream percentage. And trust me, this is tried and tested, so you can trust me. First, intentions. Answer the why you want to score well, why you want to achieve that percentage. The answer may be you want to score well because you want your parents to feel proud for you, or you want to score well because you want to feel confident, or it may be you want to score well because you want to achieve that percentage that will open your doors for your dream college. So our answer varies, but you need to decide what are your intentions behind your scoring well. Okay, the second study tip that is the most important is keep your phone away from your eyes. While studying, you don't need your phone. And mark my words, you don't need your phone. And nowadays, everyone has a gadget except phone. Like आपके पास तो एक laptop होगा और tab होगा. Anything, any gadget you have, you can use that to study. But your mind is now built with that quality कि आप phone use करोगे. Okay. So if you don't have any other gadgets rather than phone, so you can on the DND mode or flight mode. And yes, इसके बाद ही आप कुछ भी टेक्निक्स ऐड कर सकते हो आपके रूटीन में, बट दिस इज द फोरमोस्ट. ओके, अगर इस वीडियो के बाद आप जाके पढ़ रहे हो तो फोन को साइड रखना. थर्ड इज टेक्निक्स. देखो, टेक्निक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट टेक्निक्स आप बस ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ सकते. ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट योर टेक्निक्स. There are so many techniques like Pomodoro techniques or anything you are comfortable with. Find your technique कि कैसे आप पढ़ सकते हो. My suggestion would be use Pomodoro technique. That is a very important technique if you are someone who can't concentrate for a longer period of time but you want to study for long hours. So use that technique. This is very important. And yes, with the techniques you have to track your study कि आप दिन के कितने घंटे पढ़ रहे हो. For that use the Forest app. This is a वेरी यूजफुल ऐप एंड मैं बता रही हूँ, मैं 4 साल से ये ऐप यूज कर रही हूँ एंड दिस हैज बीन माई स्टडी बडी फॉर एवर. ओके, सो यूज दैट ऐप एंड देन यू कैन ट्रैक योर स्टडी दैट आप कितने घंटे पढ़ रहे हो. एंड येस, यू नीड टू ट्रैक दैट. स्टिकी नोट्स. आप जहां भी पढ़ रहे हो उसके सामने बस या उसके साइड में, अगर आपके आंख के सामने रहना चाहिए, उस स्टिकी नोट में आप 3 चीजें मेंशन करना. फर्स्ट, व्हाट इज योर ड्रीम परसेंटेज, आप कितने परसेंटेज लाना चाहते हो. सेकेंड, उसमें लिखना कि कीप योर फोन असाइड. यू कैन राइट दैट आई विल नॉट यूज माई फोन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड द थर्ड थिंग विल बी आई कैन डू इट. आपको ये 3 चीजें उस स्टिकी नोट में लिखना है एंड उसको चिपकाना है आपके स्टडी स्पेस में. आई मीन दिस हेल्प्स अ लॉट. जब भी आप पढ़ने जाओगे ना, आपका फोकस उधर जाएगा एंड यू विल सी दैट अच्छा ये सब मुझे करना है टू अचीव माई ड्रीम परसेंटेज. ओके, सो यस, डू दैट. Then I want you to write your syllabus in a pen and paper. By saying this, I literally want you to write your each subjects, each topic. हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स को लिखना है एंड यू हैव टू ट्रैक दैट आपने किस चैप्टर के कौन से पार्ट को कंप्लीट कर लिया है. आफ्टर राइटिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर सब्जेक्ट, यू नीड टू डिवाइड दोज चैप्टर्स into 3 parts. First is easy, medium and tough. According to your preferences, that which chapter is very tough for you, which chapter is medium and which chapter is very easy for you, divided in 3 parts. And then आपको वो select करके पहले tough chapters को complete करना है. ठीक है, and by doing these things you can track that आपके कितने चैप्टर्स रहे हैं और कितने चैप्टर्स के कौन कौन से टफ टॉपिक्स है जो मुझे कवर अभी भी करना है. एंड यू make it easier for yourself to find out during your exams के किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, सो डू दैट राइट नाउ आफ्टर दिस वीडियो. टाइम टेबल इज अ गेम चेंजर. आई एम सेइंग दिस ट्रूली कि आई हैड मेड टाइम टेबल्स थ्रू आउट माई 12th. यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल. टाइम टेबल के मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप बनाओ कि हर दिन आप कितने बजे से कितने बजे पढ़ रहे हो, ये मैं नहीं बता रही हूँ. बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ होता है एंड आपका शेड्यूल चेंज होता जाता है एंड आई नो दैट कि ऐसा होगा. एट द एंड ऑफ द डे आपको नेक्स्ट डे के लिए बनाना है एक टाइम टेबल कि आप नेक्स्ट डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो. उस टाइम टेबल में 2 चीज़ें रहना चाहिए, एक ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट एंड एक ईजी सब्जेक्ट.
एक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा आवर्स देने वाले हो एंड सेकंड सब्जेक्ट को कम आवर्स। ओके, सो इस वे से आप नेक्स्ट डे प्रिपेयर रहोगे कि मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ना है। एंड ऐसे बिकॉज मुझे मेरे भी ऐसे दिन गए हैं जब मैं टाइम टेबल्स बनाती नहीं थी, तो मैं सुबह उठ के पहले सोचती थी क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसी में ही मेरा 1-2 घंटा चला जाता था। एंड देन आई गेट बोर्ड एंड बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता था। सो टाइम टेबल बनाओ आप कौन से दिन क्या पढ़ने वाले हो, एंड बिलीव मी, दिस इज रियली अ गेम चेंजर। Do not attend any event. I am saying this again, this point strictly, that do not attend any of your event. Even if आपके गैप्स के बीच में वो इवेंट पड़ रहा है, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप जब उस इवेंट से जाकर आओगे ना, आपका एक दिन तो वेस्ट होगा। एंड द नेक्स्ट डे आप फोटोज देखोगे, क्या हुआ था उसके बारे में सोचोगे, एंड इतने दिनों से जो फोकस आप करते आ रहे हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड आप तो वो नहीं चाहते हो, आई एम श्योर आप नहीं चाहते हो ना। येस, सो मेक श्योर टू नॉट अटेंड एनी इवेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। इवन इफ वो लंच के लिए बुला रहे हैं, इवन इफ वो डिनर के लिए बुला रहे हैं, डू नॉट गो देयर। The next point, of course, is social media. Cut off your social media for those 2 months. Even if आपके 10 दिन गैप से, 15 दिन गैप से, 5 दिन गैप से, उसमें भी सोशल मीडिया डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने या 1 महीना अगर आप सोशल मीडिया से दूर रह जाओगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आई विल शेयर यू वन ऑफ माई टेक्निक्स दैट मैं अप्लाई करती थी ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स। आई यूज़ टू मेक सेपरेट कॉपीज़, मतलब पूरा सेपरेट कॉपी लाती थी हर सब्जेक्ट के लिए, एक कॉपी, एंड पतला सा कॉपी होता था। आई विल शो यू राइट नाउ। एंड उसमें मैं जो भी पढ़ती थी, एंड हर चैप्टर को मैं 5 पेजेस में समराइज़ करती थी। 1 पेज में समराइज़ करना इज़ ओवररेटेड फॉर मी एटलीस्ट। एंड समराइज़ योर होल चैप्टर इन 5 पेजेस, एंड उस 5 पेजेस को एग्ज़ाम के सुबह वाले दिन वो पढ़ के जाना। बिकॉज सुबह वाले दिन आपके पास इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, आप सब चीज़ तो नहीं कर सकते ना। बस फॉर अ ओवरव्यू, आप जब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे होंगे ना, उस चैप्टर्स को राइट डाउन करते जाना। आई विल शो यू राइट नाउ, 1 सेकेंड। ओके, दिस इज़ माई कंप्यूटर साइंस कॉपी जो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बनाई थी ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस। डिवाइड योर पेज विथ 2 पार्ट्स, एंड आपको ऐसे कुछ नोट्स बनाने हैं। एंड देखो हो गया कंप्लीट। सो इस वे से ना एग्ज़ाम के सुबह वाले दिन जो केओस रहता है ना, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं किस किस को पढ़ूँ। सो आप अगर समराइज़ कर दिए होंगे ना, आपके लिए बहुत ईजी होगा वो चीज़ को पढ़ना एंड रिवाइज करना एंड रिकॉल करना। सो दिस इज़ अ रियली गुड टेक्निक आई यूज्ड इन माई एग्जाम्स एंड इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू से दैट टेक अ चिल पिल। आई नो इतने सारे पॉइंट्स बोलने के बाद आई एम सेइंग यू दैट टेक अ चिल पिल, बट रिमेंबर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एंग्जाइटी, लेस प्रोडक्टिव वर्क, लेस फोकस ऑन योर स्टडीज एंड मैनी थिंग्स आर देयर। सो आप पढ़ो अच्छे से, आप सारे टेक्निक्स को देखो, ये सारे स्टडी टिप्स को फॉलो करो, एंड आई एम श्योर दैट यू विल एस योर एग्जाम, यू विल स्ले योर एग्जाम। आपको आपके परसेंटेज अच्छा आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। एंड आई एम गिविंग यू दिस ट्रस्ट, दिस बिलीव इन विद इन योर सेल्फ दैट आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स जस्ट दैट यू नीड दैट 1 स्टेप। जितने एग्जाम पास आएंगे, आई नो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कम होगा, आपको लगेगा ये करना है, वो करना है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। एंड बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे कि कैसे टिप्स दो, 2 दिन में कैसे पढ़ना है, 3 दिन में कैसे पढ़ना है। बस करो यार, इतना खुद को स्ट्रेस मत दो। जस्ट रिमेंबर स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। एंड आपके फ्रेंड्स के 10 चैप्टर कंप्लीट हुए एंड आपके 1 कंप्लीट हुए, डू नॉट स्ट्रेस, आप भी करोगे। एग्जाम्स के टाइम पे कुछ ना कुछ करके आप कर ही लोगे। सो डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ सो मच, जस्ट अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करो, एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखो, एंड जितने भी स्टडी टिप्स मैंने बोले उसको फॉलो करो। एंड आई नो यू ऑल विल एस योर एग्जाम्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th एंड 12th बोर्ड, और जो भी आप एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट, एंड खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि आप भी वो कर सकते हो। बिकॉज एग्जाम्स के टाइम पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप कर सकते हो। इवन योर पेरेंट्स विल डाउट यू दैट आप नहीं कर सकते हो, एंड उस डाउट को ही आप खुद में एक जुनून लो कि मैं अपने पेरेंट को दिखा के रहूँगी या दिखा के रहूँगा कि मैं ये कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, आई विल शो माई पेरेंट्स, आई विल शो माई रिलेटिव्स, आई विल शो एवरी वन दैट आई कैन डू इट, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट
जिसको हमेशा टीचर्स रिमार्क्स देते थे कि योर डॉटर कैन डू वेल बट उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहिए, दिस टाइप के कमेंट्स आते थे। एंड मैंने उसको स्पोर्टिवली लिया एंड मैंने खुद को प्रूव कर दिखाया। इवन इफ माई परसेंटेज वॉज 86%, नॉट इन 90s, बट आई डिड माई बेस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड एग्जाम के टाइम पे रिमेंबर, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टडी, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर टिप्स। आपके टिप्स जो भी आपके लिए काम करते हो उस पर फोकस करो। कोई और बोल रहा है इसीलिए मत करो। अभी अभी मैं भी जो टिप्स बता रही हूँ उस पर भी आप काम मत करो अनलेस एंड अनटिल you think that this is working for you. Okay, so yes, that's it for today's video. All the best for your exams. I know you all will ace your exams. I know you can do it and you also know you can do it. Just अंदर से लाओ कि आप भी कर सकते हो. Okay, bye and all the best again.